सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर काजी रशीद अनवर जी हमसे जुड़ चुके हैं। इज ऑन द लाइन नाउ। वो यूनानी मेडिसिन में काम करते हैं। अंधेरी यूनानी कॉलेज के प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है और यूनानी का बहुत ही सुंदर नॉलेज है। और इसके अलावा यूनानी हॉस्पिटल अंधेरी में काफ़ी चैरिटेबल एक्टिविटी से वो जुड़े हुए हैं। हम लोग लेट हुए हैं किसी वजह से, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा। मैं काजी रशीद जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब वो अपना लेक्चर शुरू करें। ओवर टू रशीद जी। Thank you very much. First of all, I would like to thank B. Kumar ji for inviting me for speaking on Unani medicine. Very warm welcome to all of you on this tough time of pandemic of COVID. Actually, I have invited here to talk about Unani medicine. Can you hear me, please? Hello. Yes. I'm audible to you all. Yes, please go ahead. Okay, fine. So the introduction of Unani medicine. As the name suggests, Unani medicine is a holistic medicine, is a herbo-mineral medicine. It was originated in Greek. That's why it is called as Greek Arab medicine and developed in Arab countries. It has its bright history in the world, like Ayurvedic medicine, like other medicines. So Unani medicine, Unanipathy is one of these pathies which has been practiced in this world since thousands of years. Unani is a natural, safe and side effect free way to prevent the health and the treatment of the diseases. The traditional Greco-Arab medicine means the system of medicine which is a symbol of life. As the name indicates, it was originated in Greece, which is in Arabic called as Yunan. Therefore, the system is hence called as Unani medicine. The historical background, if we go in short, it is an age-old time-tested system of medicine dating back 5,000 years of Greece. It is not only the system of medicine, but it gives complete concept of natural, happy, healthy, social and spiritual lifestyle. The ancient Greek philosopher Asclepius is credited as the originator of the medicine, and Hippocrates is recommended as the father of system of medicine. It is practiced since thousands of years in Middle East and South Asian countries. The basic fundamentals of Unani medicine. If we are talking about the basic fundamentals, it is based on the teaching of the Greek philosopher, physician Hippocrates and the Galen, which is in Unani term called as Bucras and Jalinus. This system of medicine developed into a elaborated medical system in Middle Age era by the Arabic and Persian physicians such as Zakaria Razi, Ibn Sina, which is termed as Avicenna, Ibn Nafis, etc. Excuse me. The fundamentals. Hello. हाँ, excuse me sir. आपके पीछे जो लाइट है उसको बंद कर दीजिए, उसकी वजह से आपका फेस काला दिख रहा है। हाँ, यस, दैट्स गुड। और दूसरा थोड़ा हिंदी इंग्लिश कंबाइंड रखिएगा। Okay, fine. Thank you. May I get any idea about the audience? Mixed audience. Mixed audience means medical or from medical field or from general public? No, general public and some of from the medical field also. Okay. All right. तो अगर इसकी बात करें हम कि यूनानी मेडिसिन का बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, तो जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन का बेसिक फंडामेंटल्स है, वैसे यूनानी मेडिकल का भी बेसिक फंडामेंटल्स है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में पंच धातु का एक कंसेप्ट है, वैसे ही यूनानी मेडिसिन में पंच महाभूत का एक कंसेप्ट है, वैसे यूनानी मेडिसिन में अनासिर अरबा कहते हैं।
क्योंकि ग्रीको अरब मेडिसिन है तो इसमें बहुत ज्यादा टर्म्स अरबिक की है, पर्शियन की है और ग्रीक टर्म्स है और उर्दू टर्म्स है। तो अनासिर अरबा का जो कंसेप्ट है उसमें है, ये अनासिर अरबा का कंसेप्ट ये है कि ये जो यूनिवर्स है पूरा, ये इट इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक थिंग्स that is called as nar, ma, baat, khat, means the fire, means the air, means the water and means the soul. तो ये जिस तरह से ये पूरा यूनिवर्स इन 4 चीजों से मिलकर बना है, इस तरह से हमारा बॉडी भी इन 4 चीजों से मिलकर बना है और उसको हम कहते हैं अनासिर अरबा का नजरिया। इसी तरह आयुर्वेद में पंच महाभूत का नजरिया, पंच महाभूत का नजरिया माना जाता है। वो आकाश को भी एक एलिमेंट मानते हैं, लेकिन यूनानी मेडिसिन में 4 एलिमेंट्स को माना जाता है, 4 एलिमेंट पर इसका बुनियाद है। अब बात की जाए कि इस कायनात में, इस यूनिवर्स में मवालिद सलासा हम कहते हैं हमारी टर्म में, कि 3 चीजें होती है, हैवानात होते हैं, नबातात होते हैं और जमादात होते हैं। उमूर तबिया इसका यूनानी मेडिसिन, द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ यूनानी मेडिसिन इस उमूर तबिया, मतलब इंसान की जो तबीयत है, इंसान की जो चीज वो है, वो 7 चीजों से मिलकर बनती है। दैट इज कॉल्ड एज उमूर तबिया। दैट इज अरकान मीन्स द अनासिर बेसिक एलिमेंट, मिजाज मीन्स द टेम्परामेंट, अखलाक मीन्स द ह्यूमर, आजा मीन्स द ऑर्गन, अरवाह मीन्स द सोल एंड द हवा मीन्स द कवा मीन्स द पावर एंड अफआल मीन्स द फंक्शन। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल्स है, बहुत ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाते हुए। कंसेप्ट ऑफ डिसीज इन यूनानी मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन का कंसेप्ट ये है कि डिसीजेस जो है वो यूनानी मेडिसिन क्योंकि 4 ह्यूमरल थ्योरी पर बेस करती है हिपोक्रेट के, कि हमारी बॉडी में 4 ह्यूमर्स होते हैं जिनको हम अपनी यूनानी में सौदा, सफरा, बलगम और दम कहते हैं। तो यूनानी मेडिसिन का ये मानना है कि 4 जो ह्यूमर्स है बॉडी में, इनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बैलेंस is mandatory for the condition of health, and if any qualitative or quantitative imbalance occurs in these 4 humors, the disease appears. तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इम्बैलेंस क्या हो सकता है? जैसे खून में खराबी हो जाती है, वो खराबी कुछ भी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है। जैसे सफरा में खराबी हो सकती है, सफरा इज अ येलो बाइल। जैसे सौदा में खराबी हो सकती है, सौदा इज अ ब्लैक बाइल। एंड जैसे सफरा में खराबी हो सकती है, दैट इज फ्लेगम। तो इन अनासिर अरबा की क्वांटिटेटिव खराबी ये होती है कि आपको उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए या कम हो जाए नॉर्मल से, और क्वालिटेटिव खराबी हो सकती है कि उनकी क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाए, उनका जो नॉर्मल टेम्परामेंट है, जो उनका नॉर्मल डिस्टर्ब हो जाए, तो उनका नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से हेल्थ कायम नहीं होती, बीमारी पैदा हो जाती है। तो दिस इज अबाउट द बेसिक फंडामेंटल्स। अगर ये बात की जाए कि हिंदुस्तान में यूनानी सिस्टम कब आई, तो हम बोल सकते हैं कि 12th और 13th सेंचुरी में, जब दिल्ली में सल्तनत कायम हुई और अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ने सब यूनानी स्कॉलर्स अपने साथ लाए, तो 12th सेंचुरी से यूनानी मेडिसिन इज इन इंडिया, एंड नाउ इट इज कंसिडर्ड एज एन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक एन आयुर्वेदा, बिकॉज इंडिया इज अ बायोलॉजिकल कंट्री। तो यूनानी मेडिसिन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नबातात का होता है, बहुत ज्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। तो हिंदुस्तान की आबोहवा यूनानी मेडिसिन को बहुत रास आई, और यूनानी मेडिसिन इज नाउ कंसिडर्ड एज द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। Is comfortable? Everybody is comfortable? I am audible? I am understandable for all of you, please? Yes, yes. Okay. अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुगल इरा जो था, उसमें भी यूनानी मेडिसिन काफी डेवलप हुई। Alauddin Khilji has several eminent Unani physicians, Unani Hakims is in royal court. In the coming years, this royal patronage not only means development of Unani practice in India, but also of the Unani literature with the aid of in Indian Ayurvedic literature. So as far as we have talked about the basic fundamentals, it is based on the concept of basic 4 elements and the concept of the 4 humoral theory of Hippocrates. That is Sauda, Safra and Balgam and Dam. In Unani medicine, the modalities of treatment, there are 4 modalities of treatment, means the diseases are treated in Unani medicine. Diseases are diagnosed in Unani medicine with the help of nerves, which is called as nadi or pulse, or with the help of stool examination or urine examination and general physical examination of the patient.
ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस इन यूनानी मेडिसिन। तो यूनानी मेडिसिन में यह होता है कि ट्रीटमेंट डिसीजेस का जो होता है वो या तो रेजिमिनल थेरेपी से होता है, उसको इलाज भी तदबीर कहते हैं। उसमें होता है यूज ऑफ एक्सरसाइज, मसाज, वेनिसेक्शन, लीचिंग, कपिंग एंड डाइट थेरेपी। या तो फार्माकोथेरेपी से होता है जिसको हम इलाज बिल दवा कहते हैं, यूज ऑफ ड्रग्स, आइदर सिंगल ड्रग्स और कंपाउंड फॉर्मुलेशन। ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड बाय is originated from plants, animals and mineral origin, either one or combination of drugs. And the surgical intervention means it is इलाज बिल यज्ञ। तो जैसा यूनानी मेडिसिन का मानना है कि जो अनासिर अरबा है, जैसे हमने बताया कि नार, मा, बात, खाक, यानी आग है, फायर है, मिट्टी है, हवा है, तो इनका एक अपना अपना टेम्परामेंट होता है, इनका एक अपना अपना मिजाज होता है। जैसे कि हवा का मिजाज जो है वो हार रतब है, वैसे ही आग का मिजाज जो है वो हार याबिस है, और मिट्टी का मिजाज जो है वो बारिद याबिस है, और पानी का मिजाज जो है वो बारिद रतब है। अकॉर्डिंगली जो इंसान के जिस्म में अखलात होते हैं, जो ह्यूमर्स होते हैं, 4 ह्यूमर्स, इनका भी एक मिजाज होता है। जैसे खून का जो मिजाज है वो हार रतब है, जैसे हवा के मिजाज से खून का मिजाज मिलता है, वैसे ही सफरा का मिजाज है वो हार याबिस है। हार मीन्स हॉट, याबिस मीन्स ड्राई। हार रतब मीन्स हॉट एंड दिस इज द यूनानी टर्म। ओके, तो आग का मिजाज जो है वो हार याबिस है। हार रतब मीन्स हार एंड वेट। मिट्टी का मिजाज जो है वो सौदा के मिजाज के मुताबिक है, और सौदा का मिजाज मिट्टी के मिजाज के मुताबिक है, दैट इज बारिद याबिस। एंड पानी जो है, बलगम जो है, उसका मिजाज जो है पानी के मिजाज के मुताबिक है, दैट इज बारिद रतब। तो ये जो मिजाज है, यूनानी में मिजाज के कंसेप्ट को बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जितनी भी इंसान के जिस्म में ऑर्गन्स है उनका अपना एक मिजाज है, अखलाक है उनका अपना एक टेम्परामेंट है। उसी तरह मौसम का मिजाज होता है, उसी तरह अलग अलग उम्रों का अलग अलग मिजाज होता है, उसी तरह अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग मिजाज होता है। तो यूनानी जो कंसेप्ट है इलाज जिस पर काम करती है, यूनानी का ये मानना है कि डिसीजेस अगर हॉट हो तो उसको कोल्ड मेडिसिन दी जानी चाहिए, अगर डिसीजेस कोल्ड हो उसको हॉट मेडिसिन दी जानी चाहिए। तो यूनानी में बीमारियों को इलाज के लिए ये 3 चीजें इस्तेमाल, ये 3 मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है, रेजिमिनल थेरापी, फार्माकोथेरापी एंड द सर्जिकल इंटरवेंशन। कभी कभी सर्जिकल इंटरवेंशन इज ऑलवेज द लास्ट चॉइस, बट रेजिमिनल थेरापी, फार्माकोथेरापी, डाइटोथेरापी, these are can be used in combination. So the scope of Unani practice in the present scenario. What is the scope of Unani practice? So we can say that in the recent scenario, because of the unwanted side effects of modern medicine and because of lot of gray areas in allopathic system of medicine, the popularity and public interest towards the alternative systems of medicine is increasing day by day. Public is now returning back towards the natural side effect free, safe and economic way of preventing health and treatment of diseases, and hence the demand of alternative therapies like Unani, like Ayurveda, like Siddha, like Yoga, like yoga, like homeopathic is increasing day by day. The Unani medicine is one of the well-known alternative traditional and natural system of medicine practiced safely and successfully in prevention and treatment of diseases. In the wide range of diseases in worldwide, it is practiced since thousands of years, along with the special formulation of chronic medical conditions. We have got lots of simple, short and sweet formulation also. Those are useful in daily routine medical practice. The common Unani medicines means the remedies which are easy to get and easy to use. Now, if we are talking about how the Unani medicine used or prepared or it is available in the market. So Unani medicine is available in the market in the single drug form or in combination of drugs or patent drugs. So we can get Unani medicine in powder form of single drug or multiple drugs, that is called as sufuk in Unani, or majun like in Ayurveda, Chavanprash type, or Unani medicine शरबत या सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है, अर्क फॉर्म में भी अवेलेबल है,
एक्सटर्नल यूज के लिए ऑइंटमेंट्स भी अवेलेबल है, ऑयल्स भी अवेलेबल है। तो जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन के फॉर्म्स है यूज करने के डिफरेंट, तकरीबन वैसे ही सब फॉर्म्स यूनानी मेडिसिन के भी है। इंजेक्टेबल्स यूनानी मेडिसिन में पैरेंटल मेडिसिन का भी कंसेप्ट नहीं डेवलप हुआ है, और यूनानी मेडिसिन इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से दो तरीकों से यूज की जाती है। तो यूनानी मेडिसिन में एक कंसेप्ट है कि इंसान बीमार जब पड़ता है जब उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब उसकी इम्यूनिटी कम होती है तो उस पर बाहर के एलिमेंट्स बहुत जल्दी असरअंदाज होते हैं, वो बीमार पड़ जाता है। तो यूनानी मेडिसिन में जहां ट्रीटमेंट और डिसीजेस, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस का कंसेप्ट है, वहीं एक कंसेप्ट है इम्यूनिटी बूस्टअप का भी, कि अगर ऐसी दवाएं दी जाए इंसान को जो उसकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करे तो इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ऐसी मेडिसिन को हम इम्यूनो बूस्टिंग मेडिसिन कहते हैं, ऐसी दवाएं कहते हैं जो कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती है। So Unani medicine is useful in day-to-day practice also, and especially useful in the chronic conditions also. Here few examples we have shown of Unani medicine, but before coming on the example, this is one of the need of the community. This is a pandemic of COVID. So many people are asking us that is Unani medicine having any concept of the wabai amraz or pandemic diseases, and is the Unani philosopher have enlightened about these diseases? So yes, I am telling that in Unani medicine, definitely there is a concept of pandemic or wabai amraz. It is called in Unani wabai amraz. ऐसे अमराज जो हवा के जरिए फैलते हैं उनको वबाई अमराज कहते हैं। और इन वबाई अमराज का कंसेप्ट बहुत कुछ पुराना है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो अवेस्टिना के जमाने में भी एक ऐसी वबा फैली थी जिसमें उस वबा में लोगों को एक दूसरे से सोशल कांटेक्ट की वजह से वबा ज्यादा फैलती थी। तो इब्ने सीना ने ये ऐलान कराया था कि सब लोग अपने अपने घरों में रहे और अपनी अपनी एक्सरसाइज करे, अच्छी डाइट ले, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करे और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। तो उसकी वजह से जिन्होंने उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया था, जिन्होंने उनके सजेशंस को फॉलो किया था, तो बहुत सारे लोग बीमार होने से बच गए थे। लेकिन जिन्होंने उनके सजेशंस को फॉलो नहीं किया तो बहुत सारे लोग उस जमाने में भी पेंडेमिक में आकर बीमार हुए थे या मौत के करीब पहुंच गए थे। तो यूनानी मेडिसिन में ये होता है पेंडेमिक्स का कंसेप्ट के अपने आसपास के इलाकों को साफ रखा जाए, घर को साफ रखा जाए, एयर को क्लियर रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, डाइट प्रॉपर ली जाए, हेल्दी डाइट ली जाए, एक्सरसाइज की जाए, ताकि हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रेस ना लिया जाए, ताकि हमारी इम्यूनिटी प्रॉपर रहे, ताकि हम पे बीमारियों का असर कम से कम हो सके। तो डेफिनेटली यूनानी मेडिसिन बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे, देखिए कोई भी मेडिसिन परफेक्ट नहीं है, नो पैथी इज परफेक्ट। अगर कोई एक पैथी परफेक्ट होती तो दूसरी पैथी की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि हर पैथी में कुछ कमियां है, कुछ खामियां है, इसलिए बहुत सारी पैथीज यूज हो रही है। And I'm always telling to my students that you can use any pathy but use with sympathy. तो यूनानी मेडिसिन का भी इस्तेमाल ये एक बहुत ही सेफ वे ऑफ ट्रीटमेंट है और इसमें बहुत ही नेचुरल तरीके से बीमारियों का जड़ से इलाज किया जाता है, बीमारियों को दबाया नहीं जाता और बहुत ही मतलब सेफ और साइड इफेक्ट फ्री तरीके से यूनानी मेडिसिन से लोगों का इलाज किया जा सकता है। और यूनानी मेडिसिन आज के इस साइंटिफिक, आज के पास्ट लाइफ में भी उतनी ही यूजफुल है जितने आज से 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले यूजफुल थी। यूनानी मेडिसिन को अब साइंटिफिक पैरामीटर्स पर भी इवेल्युएट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के अंडर में इंडिया में तकरीबन 60, more than 55 or 60 यूनानी कॉलेजेस आर वर्किंग एंड दे आर प्रोड्यूसिंग अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सिमिलरली बेंगलोर में और हैदराबाद में ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर यूनानी का रिसर्च वर्क हो रहा है। स्पेशली जो हैदराबाद में एक पूरा CCRI का सेंट्रल रिसर्च ऑफ यूनानी मेडिसिन का एक बहुत बड़ा यूनिट है जहां पर काम हो रहा है सिर्फ ल्यूकोडर्मा पर। वैसे ही पूरे बेंगलोर में एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट चल रहा है जहाँ PG कोर्सेज चल रहे हैं। तो आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेद के साथ साथ यूनानी के डेवलपमेंट पर भी बहुत काम कर रहा है और यूनानी मेडिसिन डे बाय डे पब्लिक में अब पॉपुलर हो रही है।
और इसकी मेडिसिन इजीली अवेलेबल हो रही है, इसकी मेडिसिन पर लोगों का एतमाद बढ़ रहा है, लोगों का फेथ बढ़ रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स की हमने दी थी कि हमने उसको जरा कंपेयर किया था कि जब एलोपेशिया होता है, बाल नहीं होते हैं, बाल झड़ जाते हैं किसी वजह से, तो उसका मॉडर्न में क्या ट्रीटमेंट है और मॉडर्न ट्रीटमेंट के क्या साइड इफेक्ट है और यूनानी ट्रीटमेंट से वो साइड इफेक्ट से कैसे बचा जा सकता है। दो चार एग्जाम्पल लूंगा मैं, टाइम आई थिंक आई हैव कवर्ड माय ओन टाइम। तो एलोपेशिया और जिसको हम बोलते हैं कि बाल झड़ जाना, बाल गिर जाना, उसमें हम मॉडर्न मेडिसिन में जो यूज करते हैं वो मेडिसिन है मैनेटॉल लोकल एप्लीकेशन ऑन स्काल्प। उसकी वजह से हाइपोटेंशन होता है, गिडीनेस होता है। उसकी जगह यूनानी मेडिसिन में रोगन वैसे मुर्ग या रोगन आंवला इस्तेमाल होता है और उससे कोई इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे आप आजकल देखते हैं कि बड़ा स्ट्रेस है लोगों की लाइफ में, लाइफ स्टाइल पैटर्न सही नहीं है, तो इंसोम्निया बहुत ज्यादा है। जब हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं तो इंसोम्निया के ट्रीटमेंट से लोगों को एडिक्शन होता है और एक के बाद 2 गोली, 2 के बाद 3 गोली, 4 गोली इंजेक्शन देने पड़ते हैं और अल्टीमेटली वो भी यूजलेस हो जाते हैं और पेशेंट को नींद नहीं आती। तो ऐसी सिचुएशन में यूनानी में अक्सीर शिफा है, खमीर खशखाश है और जेंटल मसाज ऑफ लोगन लबू ऑन स्काल्प है। ये सब चीजों से एडिक्शन का कोई रिस्क नहीं होता। उसी तरह हम देखते हैं कि यूनानी मेडिसिन में जब कफ होता है ड्राई या प्रोडक्टिव कफ, तो हम जो मॉडर्न कफ सिरप देते हैं उसकी वजह से सेडेशन होता है। हम बोलते हैं कि अगर आप ये पीकर ड्राइविंग मत कीजिए या कोई सेंसिटिव काम मत कीजिए। तो यूनानी मेडिसिन में शरबत बनफ्शा है, शरबत जूफा है, ऐसी कफ सिरप है जिनसे सेडेशन का कोई रिस्क नहीं होता। वैसे असरोल एक जड़ी बूटी है जो हाइपरटेंशन के प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में यूज होती है। अगर हम हाइपरटेंशन की बात की जाए तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर और इसकी जो मेडिसिन मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज होती है उससे लॉन्ग टर्म पर एक सुसाइडल इफेक्ट टेंडेंसी डेवलप होती है। तो उसकी जगह यूनानी में एक अस्ट्रोसिन करके टैबलेट आती है कि जो बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन को अच्छी तरह कंट्रोल करती है और उससे कोई ऐसा सुसाइडल टेंडेंसी जैसा साइड इफेक्ट नहीं डेवलप होता। शरबत अंजबार है, एक हमारा सिरप फॉर्मुलेशन है। इट इज वेरी मच इफेक्टिव इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेमोरेज। रस कपूर यूनानी का डायूरेटिक्स है। अगर हम बात की जाए दिस इज द फर्स्ट डायूरेटिक्स इन द वर्ल्ड। तो अगर मॉडर्न मेडिसिन के डायूरेटिक्स जैसे हम यूज करते हैं फ्रोजामाइड वगैरह, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, सोडियम और पोटेशियम कम होता है, क्रैम्प्स जैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं लॉन्ग टर्म यूज पर। तो यूनानी मेडिसिन के जो डायूरेटिक्स है उनके इस्तेमाल से इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे अगर हम बात की जाए एच पाइलोरी की और एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स की, तो बड़ा कॉमन है ये भी, और इसमें मस्तगी, रूबी और हनी हमारे यूनानी मेडिसिन में ऐसी दवाएं हैं जो बहुत ही यूजफुल है। हल्दी या टर्मेरिक पाउडर 5 ग्राम, इट इज द बेस्ट एंटी एलर्जिक, इम्यूनो बूस्टर एंड एंटीसेप्टिक मेडिसिन। इट इज यूज्ड इंटरनली आल्सो एंड एक्सटर्नली आल्सो। इट इज आल्सो यूज्ड इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। चौब, चीनी और उष्बा हमारे ब्लड प्यूरिफायर है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो जो अखलात होते हैं उनमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस होता है तो उसकी वजह से बीमारी पैदा होती है। तो अगर अखलात में डिस्टर्बेंस हो तो उसको साफ करने के लिए जो दवाएं यूज होती है ब्लड को साफ करने के लिए, उसको ब्लड प्यूरिफायर कहते हैं। तो चौब, चीनी, उष्बा, उन्ना, कपिस्ता और इस तरह की जो दवाएं हैं ये ब्लड प्यूरिफायर है और इम्यूनो बूस्टर है। सूरंजान एक हमारी यूनानी मेडिसिन में सेफ पेन किलर है। जैसे कि आप बात करें अगर पेन किलर की, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो पेन किलर, जो एलोपैथिक मेडिसिन में जो पेन किलर यूज होते हैं उनसे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनसे अल्सर डेवलप होते हैं, उनसे नेफ्रोलॉजिकल और हेपेटो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। लेकिन यूनानी मेडिसिन में ऐसी दवाएं हैं कि जिससे कोई भी साइड इफेक्ट किडनी या लीवर पे नहीं होता। अतरीफल, शातरा, माजूनी, उष्बा, शरबत उन्नाब ये सब ब्लड प्यूरिफायर्स है। माइग्रेन के लिए हब्बे शकीका यूज होती है, कुछ मुसल्लस यूज होती है, खमीर खशखाश यूज होता है, अतरीफल जमानी यूज होता है, शिफाए कुर्स दवाओं शिफा यूज होती है, अर्क अजीब यूज होता है। यूरिनरी कैलकुलस के लिए अजरुल यहूद होता है, कुल्सी यूज होती है, शरबत आलू बालू यूज होता है, ये सब, और संगे सरे माही यूज होता है। लीवर डिसऑर्डर्स में माजून दबीदुल वर्द, ये कंपाउंड फॉर्मुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, माजून दबीदुल वर्द यूज होता है और अफ्तीमून यूज होता है, हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा के लिए इफेक्टिव है। फेमस फॉर्मुलेशन जो है हमारे तुख्मे इसबगोल, तुख्मे खसखास, तुख्मे बारतंग और तुख्मे रेहा, ये 4 सीड्स है। ये इनका जोशांदा या खिसांदा डिकॉक्शन या वो इस्तेमाल होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए।
तो ये कुछ साइनोसाइटिस के लिए कुछ दवाएं हैं, वर्टिगो के लिए कुछ दवाएं हैं, उसको खुद्दूस वगैरह साइनोसाइटिस में यूज होता है। वर्टिगो में मेहंदी के बीज 4 ग्राम शहद के साथ इस्तेमाल करना मुफीद बताया गया है। और जो किल्लत लब्न होता है, जो औरतों में दूध की कमी होती है, उसके लिए सतावरी, जीरा, मिश्री, हमवजन सुकूफ, विथ मिल्क बीडी देना रिकमेंडेड है। और डेंड्रफ वगैरह के लिए और ब्यूटी ऑफ हेयर के लिए रीठा इस्तेमाल होता है, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल होता है। और हेयर केयर में और भी बहुत सारी दवाएं यूज होती है। डायबिटीज में जामुन के पेड़ की हर चीज एंटी डायबिटिक है अकॉर्डिंग टू यूनानी। लीव्स ऑफ जामुन, सीड्स ऑफ जामुन, ये सब एंटी डायबिटिक है। अकाकिया, कलौंजी, मेथी, गुलमार बूटी, करेला, ये अदर एंटी डायबिटिक। ड्राई कफ के लिए मुलेठी यूज होती है, लौंग यूज होती है, तुलसी के पत्ते शहद के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, अदरक का रस शहद के साथ इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्टिव कफ में टर्मेरिक पाउडर मिल्क के साथ इस्तेमाल किया जाता है, शरबत बनफशा इस्तेमाल किया जाता है। हाइपर एसिडिटी में 1 टीस्पून फुल ठंडा दूध 1 गिलास ठंडे पानी में इस्तेमाल किया जाता है। और वाटरमेलन जूस यूज किया जाता है। पुदीना, दही, लस्सी, ये सब चीजें इस्तेमाल की जाती है। कोकोनट वाटर यूज किया जाता है। एक्ने और पिंपल्स में यूनानी मेडिसिन में दोनों तरह से ट्रीटमेंट होता है। नीम के पत्ते वगैरह इस्तेमाल होते हैं और एक्सटर्नल यूज के लिए एंटीसेप्टिक दवाएं इस्तेमाल होती है और इंटरनल यूज के लिए ब्लड प्यूरिफायर इस्तेमाल होती है। सो एलोवेरा इज ऑल्सो फॉर लोकल एप्लीकेशन फॉर एक्नी। ग्रीन टी इज ऑल्सो यूजफुल। आंबा हल्दी इज ऑल्सो यूजफुल। बेसन इज ऑल्सो यूजफुल। हाइपरलिपिडेमिया के लिए जिंजर का इस्तेमाल होता है, लहसुन का इस्तेमाल होता है, लेमन जूस का इस्तेमाल होता है और हनी विथ ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल होता है हाइपरलिपिडेमिया के लिए। अस्थमा के लिए सूखा आंवला और मुलेठी पाउडर 6 ग्राम 2 टाइम दिन में यूज करना चाहिए। और कुर से जीकुन नफस इस्तेमाल की जाती है कंपाउंड फॉर्मुलेशन में। और कुर से काकड़ा सिंगी इस्तेमाल की जाती है। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, क्रोनिक फेरेंजाइटिस में गार्गल्स की मेडिसिन भी होती है। उसमें डिकॉक्शन बनाया जाता है गार्गल्स के लिए। नमक के गर्म पानी से गरारा किया जाता है या अड़ूसा के पत्तों से गार्गल्स किए जाते हैं। और बल्गे अमलताज से गार्गल किया जाता है, बल्गे अमलताज से गार्गल किए जाते हैं। So these are the few examples of treatment in Unani medicine. Thank you very much. Any question, please? कुमार जी, हेलो। यूनानी के बारे में जो भी हमें बताया है रशीद जी ने, अगर आप में से किसी के कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। If any questions are there, please type the questions in your chat box, so Rashid ji can answer you. How many participants are present, कुमार जी? बहुत कम हो गए अभी, 45. कितने हैं? All right, all right, all right. आपके लिए क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं जी। Can you read the questions on your screen? No, I cannot. Okay, for loose tooth, दांत अगर हिलते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, loosening of teeth is a complete problem with different causes, right? So if hygiene is caused, then we have to maintain the proper hygiene. Otherwise, loosening of tooth के लिए लौंग का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। लूजनिंग ऑफ टीथ के लिए यूनानी मेडिसिन में बहुत सारी अलग अलग फॉर्मुलेशन यूज की जाती है। लेकिन अगर लूजनिंग ऑफ टीथ बहुत ज्यादा है तो द फाइनल ट्रीटमेंट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ। ओके, कोलेस्ट्रॉल के लिए होम रेमेडी क्या है? बताया जैसे मैंने कि कोलेस्ट्रॉल कम होता है गार्लिक से और अदरक से। लहसुन और अदरक जो है, अगर एक थर्मस में 2 ग्लास गर्म पानी डाल के उसमें एक थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी गार्लिक डाल के रखी जाए 2 घंटे के लिए और वो फिर पानी यूज किया जाए तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मलाइज होता है। लहसुन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कोलेस्ट्रॉल को कम करने की यूनानी।
तो लहसुन, कच्चा लहसुन भी खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। एलर्जिक स्वेलिंग के लिए? विच टाइप ऑफ एलर्जिक स्वेलिंग, वेयर? मिस्टर जगदीश, यू हैव रिटन एलर्जी स्वेलिंग के लिए क्या, तो एलर्जी कौन सी, ये आपने नहीं लिखा है। एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए क्या ट्रीटमेंट है? या प्लीज, आई कैन नॉट हियर। एटोपिक डर्मेटाइटिस। देखिए, जितनी स्किन डिसीजेस है, यूनानी मेडिसिन का कंसेप्ट ये है कि स्किन डिसीजेस जो होती है वो इम्प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड से होती है। तो सबसे पहले हम ब्लड प्यूरिफायर, जैसा मैंने बताया कि चरायता, शाहतरा, सरफुका, ये सब ब्लड प्यूरिफायर मेडिसिन देते हैं और वो ब्लड प्यूरिफायर मेडिसिन का बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है। लेकिन यूनानी मेडिसिन ऐसा नहीं कि मैं बोलूं और आप लिख लें और आप घर में यूज करें। यू हैव टू कंसल्ट विद द यूनानी डॉक्टर because it cannot diagnose completely it is ectopic dermatitis, right? Can arthritis be treated through Unani medicine? Definitely arthritis can be treated। जैसा हमने बताया कि बलगमी अमराज होते हैं, जो यूनानी मेडिसिन में अमराज जो होते हैं, जो डिसीजेस होते हैं, वो 4 ह्यूमर्स की वजह से होते हैं। तो अर्थराइटिस जो है उसको हम बलगमी मर्ज मानते हैं, फ्लेगमेटिक डिसीज मानते हैं। तो इसमें हम सूरनजान है और इस तरह की जो दवाएं हैं अर्थराइटिस में बड़ी यूजफुल है। और लोकल एप्लीकेशन में मसाज थेरापी है, और रोगन सुर्ख से मसाज है, रोगन फरफयून से मसाज है। तो अर्थराइटिस में इस तरह की दवाओं से बड़ा फायदा होता है। औजाई कैप्सूल है, सूरनजान टैबलेट है, इसमें बलगम का तनकिया करना होता है और पेनकिलर मेडिसिन यूज करना होती है और रेजिम्स यूज करना होती है। ओके। Is it useful for hyperactive child, ADHD? hyperactive child के लिए? नहीं, हाइपरएक्टिव चाइल्ड नीड नॉट टू ट्रीट, उसकी एक्टिविटीज को हमको सही सिम्स देना चाहिए। व्हाई यू वांट टू डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड, सर? ओके, जगदीश जी ने अभी पहले जो क्वेश्चन किया था, एलर्जी ऑन फेस, कॉन्स्टिपेशन मैं देख रहा हूँ मेरे स्किन पे, एलर्जिक स्वेलिंग, एलर्जिक स्वेलिंग। देखिए, फेस पर जो स्वेलिंग होती है ना, वो ज्यादातर किडनी डिसीज की वजह से होती है। तो यू हैव टू चेक योर किडनी फंक्शन, डोंट थिंक दैट इट इज एलर्जिक स्वेलिंग। इफ इट इज एलर्जिक तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन में भी ब्लड प्यूरिफायर होती है। और जो जैसे मैंने बताया कि टर्मेरिक इज यूज्ड एज एंटी एलर्जिक इन यूनानी, तो 5 ग्राम टर्मेरिक पाउडर रात में गर्म दूध के साथ ले सकते हैं आप। it is working on all types of allergy, but first you have to diagnose it is allergy or it is puffiness or edema due to impaired renal function. Okay, next question है डॉक्टर प्रतिमा जी का। वो पूछ रही हैं, will you please give the list of medicine for disease? क्या आपके पास ऐसा कोई लिस्ट है, या तो बना के बाद में हमें भेज सकते हैं? नहीं, ऐसे डिसीज के लिए मतलब जनरल टाइप ऑफ लिस्ट? नहीं, जनरल, फॉर जनरल प्रॉब्लम्स। ऐसे तो लिस्ट आपके लिए बुक्स अवेलेबल है बहुत सारी। ओके ओके, so you can refer that book, you can refer that book. एक डॉक्टर रिविश टंडन ने पूछा है कि माय डॉटर इज 16 ईयर एंड स्टिल सफरिंग फ्रॉम एटोपिक डर्मेटाइटिस। ओके, दे आर टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम केरला आयुर्वेद। Okay. So they are not getting relief from that treatment? Yes, but the still problem is persist. My institute is in Warsaw in Andheri. It is a charitable institute. It is an aided, government-aided Unani Medical College. We have very well-developed dermatology department with one professor, one lecturer. So if you can refer the patient, the diseases can be properly diagnosed and properly treated. रवीश जी, आपके डॉक्टर को अंधेरी इनकी जो कॉलेज है वहाँ पे लेके जाना चाहिए, तो वहाँ से उनका मतलब अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। We are providing only 10 rupees test paper, all type of OPD with the expert Unani doctors because it is government aided. Okay. Okay. Good. The OPD timing is 10 to 1. You can contact after lockdown period also. Okay. Allergic swelling on face and lips. बताया मैंने आपको।
फुट क्रैक? फुट क्रैक के लिए यूनानी का कंसेप्ट ये है कि जब बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज्यादा पड़ जाता है तो फुट क्रैक्स होते हैं, राइट। तो उसके लिए ट्रीटमेंट ये है कि जो रात में सोते टाइम हमारा जो अब्लाइकस है उसमें कोकोनट ऑयल 10 मिनट के लिए डाला जाए और कोकोनट ऑयल का फुट क्रैक पे जेंटल मसाज किया जाए। आप 10 दिन डाल के देखिए अब्लाइकस में umbilical hole में coconut oil for 10 minutes and use the coconut oil in the cracks of the foot. Okay. For diabetic? डायबिटिक्स मैंने बताया जैसा कि जामुन के जो पाउडर है, जामुन के जो बीज है, जामुन के जो पत्ते सब एंटी डायबिटिक है। अगर आप कंपाउंड फॉर्मुलेशन में ले तो डायबेनोल, शक्रीनोल ये सब दवाएं मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जामुन के जो गुठली होती है उसका पाउडर बनाकर बड़ा यूजफुल है। लेकिन क्योंकि डायबिटीज अब आज के मॉडर्न इरा में इस तरह ब्लाइंडली ट्रीट नहीं करना चाहिए, तो ये मालूम होना चाहिए कि डायबिटीज का क्या लेवल है, डायबिटीज किस लेवल पे है और उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए। Too much dry cough? ड्राई कफ के लिए हमारे यहाँ यूज होता है, अगर आप घर की दवा लें तो लौंग को जला के शहद में मिला के लेते हैं, या तो फिर शरबत ज़ूफा करके एक मेडिसिन होती है दैट इज यूजफुल इन ड्राई कफ। Okay. Allergic swelling on the face, lips. It is diagnosed as allergy of many food items, and medicine like paracetamol and all are given to the So patient. that you have to avoid the medicine. You have to avoid the allergens. Okay. I think now बिकॉज ऑफ आप एंटी एलर्जिक यूज करेंगे फिर वापस से वही दवा इस्तेमाल करेंगे तो फिर एलर्जी आने। Okay. Okay. Right, sir. Okay. Thank you very much. Now no more questions are there. Thank you. सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन की ओर से, मैं बी कुमार की ओर से, मिस्टर अशोक सचदेव, डॉक्टर कौशल साहब, डॉक्टर जलपाल शाह की ओर से मैं आपका और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं। कल वापस हम लोग मिलेंगे 5:30 बजे। आज हमारा लेक्चर आधा घंटा लेट शुरू हो पाया है, उसके लिए पहले हमने सॉरी का अनाउंसमेंट किया था और इसीलिए हम लेट शुरू किए हैं। कल 5:30 बजे ठीक लेक्चर शुरू होगा, क्योंकि कल मेरा ही लेक्चर है, तो 5:30 बजे कल हम मिलेंगे। आपको हमारा ये लेक्चर सीरीज कैसा लगा इसके बारे में आप हमें ओपिनियन जरूर भेजिए, ताकि हमें ये लग रहा है कि शायद लॉकडाउन 31 से और भी आगे जाए, तो आगे कंटिन्यू ये वेबिनार्स करने हैं कि नहीं करने चाहिए। आपके जो भी ओपिनियन है हमें लिखिए, ताकि हमें कुछ प्रिपरेशन करने की तैयारी क्या करनी पता चले, और दूसरे स्पीकर्स आपके लिए प्रोवाइड करने तो उनसे बात करने पता चले। तो अभी तक की जो बात है उसमें 31 तक की, और 31 को हमारे यहाँ पोर्टुगल की एक लेडी है जो हीलर है, वो आने वाली है ऑनलाइन हमारे साथ, वो जुड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच once again to Dr. Qazi Rashid Anwar ji. Thank you.